Ciao, ciao, dosto. Welcome to a special video. And joining me today is Shivam as we look at Atletico Club de Madrid and the summer signings that they've made. And at the outset, Shivam, welcome to the show. The signings that Simeone has been making, does do you think that Atletico will be contenders for the La Liga crown? Thank you for having me, Ajay. Once again, it's always nice to be here and talk about different clubs, different teams. And या जैसा आपने बोला, जैसा आपने स्टार्ट किया कि लॉट ऑफ साइनिंग्स मतलब उधर अगर हम प्रीमियर लीग की बात करें तो उधर लिवरपूल सारा साइनिंग्स कर रहा है. इधर अगर आप दूसरे कंट्री में जाएं तो स्पेन में डेफिनेटली एटलेटिको मैड्रिड हैज बीन द क्लब जिसने काफी ज्यादा साइनिंग्स की और अपने पूरे स्क्वाड को रिवैम्प किया है. समथिंग जो उनको करना था, काफी टाइम से करना था, बिकॉज कई सारे फ्लॉज आ गए थे उनके स्क्वाड में, कई सारे इश्यूज थे जिसके बारे में वी विल बी डिस्कसिंग अभी आगे. उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी था बिकॉज सिमोने ने इस सीजन बीच में कई दो बार रेफरेंस किया था कि वी कांट कम्पीट विद अ स्क्वाड लाइक दैट. सो या डेफिनेटली इट्स अ न्यू चेंज, इट्स अ रिफ्रेशिंग चेंज एंड वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट. अब लेट्स सी इसके बाद यहाँ से एटलेटिको कैसे आगे जाती है. तो यस एंड नो पे क्विकली बता दे शिवम अपने व्यूअर्स को कि but no, we will get into the transfer one by one. But do you think Atletico will challenge for the La Liga title this season? Yes or no? That's very tough. नहीं, you Uh, can't be I, diplomatic. I think so. Yes, I think so. Fantastic. Yes. Yeah, I think. मतलब, if I have to say, if they'll challenge for a particular trophy, मतलब any trophy, then तो definitely yes. But I think they will have a much better say in title race this season than the last year. यप क्योंकि ये अपन ने अक्सर देखा है कि यू नो एटलेटिको समटाइम्स रन आउट ऑफ देयर डेप्थ व्हेन इट कम्स टू द ला लीगा टाइटल. Any title race for that matter is a marathon, not a sprint. And Simeone, obviously, he's won 2 La Liga titles. It's not like he hasn't done it. But I feel कि last season जो उसके resources थे उसके पास में, and considering that both Madrid and Barca were little, I would say they would go through the spells where they were inconsistent. I personally feel Atletico fumbled it. Like they could have had that opportunity to extend that gap, in that La Liga title race, but even they started being inconsistent. So, this saal, I think the Atletico board and Simeone have really bolstered their ranks. And uh, tune Liverpool mentioned kiya, I would also add Napoli. So you've seen that Liverpool and Napoli both have won their respective leagues, and both are now strengthening the squad because the management of both the teams want to retain the title. But in Spain, you've seen ki yaar Madrid, now they are going through a very different transition year with Xabi Alonso coming in, with Barca and their finances. It's always tricky, under Hansi Flick. So can you give the viewers a background of what has been happening at Atletico in the summer, and who have been the major summer transfers that they've brought in, and some of the players that they've let go? Yeah. So regarding the transfers, हम लोग अभी आएंगे बात करें. First of all, a bit of context because एटलेटिको को बहुत ज्यादा हमारे जो रीजनल लैंग्वेज व्यूअर्स है वो नहीं देखते. So what happens is कि अगर आप ला लीगा का आप स्क्वाड का वेज बिल देखेंगे, जो इकोनॉमिक कॉस्ट कंट्रोल फैक्टर्स व्हिच वर सेट अप इन 2013, तो उसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि जो आपके बार्सा रेवेन्यू है वो इतने ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट क्लब्स है, उनका ग्लोबल फैन बेस इतना बड़ा है एंड उनकी ग्लोबल रीच और ऑडियंस इतनी ज्यादा बड़ी है कि दे कैन स्पेंड बहुत ज्यादा. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रेम क्लब्स की तरह कर देंगे, बट दे आर वेरी सेल्फ सस्टेन्ड क्लब्स. वेरस अगर आप बाकी क्लब्स की बात करें इंक्लूडिंग एटलेटिको मैड्रिड, अगर हम बाकी क्लब्स की बात करें सो दे कैन ओनली स्पेंड हाउ मच दे अर्न. दिस इज आल्सो ट्रू फॉर बार्सा एंड रियल मैड्रिड, बट उनके जो एक्सटर्नल सोर्सेस से रेवेन्यूज होते हैं दैट इज मच हायर एज कंपेयर टू अदर क्लब्स. सो इस समर में एटलेटिको मैड्रिड में जो दो चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट हुई है, एक तो द वेरी अनसंग हीरो बिहाइंड ऑल दिस रेवोल्यूशन इज ऑस्कर मायो. अगर आप ऑस्कर मायो के बारे में रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा आप जानेंगे, सो ही इज बेसिकली द मेन गाय, द मेन लीडर बिहाइंड दिस एंटायर रेवोल्यूशन. जो एटलेटिको ने टर्म दिया था कि दिस ईयर समर विल बी अ रेवोल्यूशनरी समर. सो ही इज देयर गाय जिन्होंने बिजनेस मॉडल ग्रोथ पे प्रॉपर उन्होंने आपका प्लानिंग किया है, उन्होंने काफी सारे स्पॉन्सरशिप्स लाए हैं क्लब में.
नाउ दिस स्पॉन्सरशिप थिंग माइट साउंड्स वेरी ट्रिवियल बाहर के क्लब्स के लिए या मे बी फॉर सम प्रेम क्लब्स, बट फॉर एटलेटिको दिस इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। Mhm. उन्होंने सबसे पहले तो बिगेस्ट रेवेन्यू का जो सोर्स है वो है कि उन्होंने अपने जो स्टेडियम के राइट्स हैं वो रियाद एयर को दे दिए। सो Yes. रियाद एयर मेट्रोपॉलिटानो से काफी ज्यादा रेवेन्यू आएगा, एंड उसके बदले में रियाद एयर ने पूरी स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करने का वो डिसीजन लिया इन द सदर्न पार्ट ऑफ द मैड्रिड। सो वो पूरा प्रोजेक्ट का एक बहुत मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू एटलेटिको को मिला है। दे ऑल्सो हैव दिस रेडबुल डील, जो रेडबुल से उन्होंने अभी एक रिसेंट डील के उन्होंने कैश इंजेक्ट किया है, वेलफिन क्रिप्टो करेंसी पार्टनर बने, विजिट रवांडा की डील हुई है, माहो बियर की डील है। सो बेसिकली दीज आर ऑल काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप्स जिनके अगर आप सम्स को मिलाओगे तो जो आपका रेवेन्यू बन के आएगा, एंड 50 मिलियन आपको क्लब ने भी इंजेक्ट किए जो उनके सीईओ गिल मरीन और कार्लोस बुचेरो हैं। सो इंक्लूडिंग एंड ये सब मैं बाकी सारे जो अदर फैक्टर्स है जैसे आपका चैंपियंस लीग में आपने नॉकआउट्स में क्वालिफाई Yep. किया, आपने क्लब वर्ल्ड कप में किया, उन सब के अलावा सो अगर अगर आप इन सब रेवेन्यूज को एक साथ हम मिलाओगे सो आपको जो बेसिकली जो चंक मिलता है, सो इसमें ऑस्कर मायो जो कि इनके मेन आपके रेवेन्यू मॉडल के जो ये आपके डायरेक्टर है उनका बहुत बड़ा रोल है। एंड सेकेंडली व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि एटलेटिको मैड्रिड का बहुत स्टेल स्क्वाड हो गया था जिसके बारे में नाउ वी विल टॉक। आप पिछले अगर 3-4 साल बाद अगर आप केवल आपको प्रॉपर स्पेंडिंग आपको देखनी है एंड अगर आपको उसको पुराने स्क्वाड से कंपेयर करना है सो डेफिनेटली आपको उसमें काफी सारे डिफरेंसेस दिखेंगे, क्योंकि कई सारे प्लेयर्स से जो मीडियोकर प्लेयर्स से बेसिकली या कई ऐसे प्लेयर थे जो एटलेटिको मैड्रिड लेवल के नहीं थे। सो वो सारी जो गलती है उनको भी इस समर प्रॉपरली रेक्टिफाई किया है एज ऑफ नाउ अभी तक एटलेटिको। Lovely, lovely. So, Shivam, thoda throw some light on a few big names, a few big arrivals who have come in. Because मैंने देखा Alex Baena है, Almada है. So can you give our viewers some perspective on who have been the major arrivals this summer? या आई थिंक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो द बिगेस्ट इशू एटलेटिको का था वो था लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उनको स्ट्रॉन्ग करनी थी बिकॉज इफ आई हैव टू स्पीक वेरी हार्शली तो लेफ्ट हैंड साइड एटलेटिको की बेसिकली डेड हो गई थी। सो व्हाट हैपेंड वाज, अगर एटलेटिको को आप थोड़ा टाइम पहले से फॉलो कर रहे हैं सो जो लेफ्ट हैंड साइड से उनकी क्रिएटिविटी होती थी, जब फिलिपे लुइस खेला करते थे वहां पे लेफ्ट बैक, एंड कोके जो कि आपका प्री 2018-19 का कोके का जो वर्जन था जो लेफ्ट क्रिएटिव मिडफील्डर की तरह खेलते थे, या समवन लाइक यानिक फरेरा करास्को जब खेला करते थे, तो वहां से उनकी क्रिएटिविटी का एक मेजर चंक आता था। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, पिछले सीजन देखा होगा कि एटलेटिको की लेफ्ट साइड इज कंप्लीटली डेड, एंड इसके दो रीजंस थे। पहली बात तो प्रॉपर अपग्रेडेशन नहीं हुआ था स्क्वाड में। सो एंड दिस इज नॉट बीन द इशू अभी कुछ साल से, दिस हैज बीन द इशू एवर सिंस फिलिपे लुइस लेफ्ट। कोई भी एक ढंग का उनका लेफ्ट बैक नहीं आया था। बीच में आपके वो इशू मास को गए थे क्योंकि आपने ट्रिपियर को ला दिया था, एंड ट्रिपियर फॉर दैट 1.5 ईयर ही वाज द बेस्ट राइट बैक इन द लीग। सो वो प्रॉपर जो चांस क्रिएशन का बर्डन था वो राइट हैंड साइड चला गया था। नाउ इस समर उन्होंने क्या किया, ऑब्वियसली रेनिल्डो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, सो रेनिल्डो इज मतलब सनडरलैंड जा चुके हैं। हावी गलान है, बट हावी गलान इज नाउ पास्ट हिज प्राइम, बैकअप ऑप्शन है, बहुत एरर प्रोन है। इन हिज प्राइम ही वाज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन ला लीगा। सो प्रॉपर वहां पे अपग्रेड करने के लिए उन्होंने सबसे पहले तो एलेक्स बायना को लिया, जो कि मेरे हिसाब से द बेस्ट क्रिएटर है इन यूरोप, ऑब्वियसली आफ्टर केडीबी। एलेक्स बायना के चांसेस क्रिएशन के नंबर्स हैव बीन द बेस्ट, एंड आई थिंक दिस इज अ स्टेटमेंट साइनिंग बिकॉज आई फील बायना जैसा प्लेयर किसी भी टॉप क्लब के लिए खेल सकते हैं, बट ही चोज टू गो टू एटलेटिको मैड्रिड। तो वो सबसे बड़ा चीज था, जो क्रिएटिविटी का इशू था वो काफी जल्दी एड्रेस किया। प्लस उन्होंने माटेओ रुजेरी को साइन किया फ्रॉम Yes, एटलांटा, Atlanta. जो कि या एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल साइन है। एक्चुअली दो प्लेयर्स लाए एटलांटा से, एक तो मूसो कीपर, सेकंड कीपर उठा के वो ले आए Yeah. हैं, यूरोपा लीग विनिंग कीपर ऑब्वियसली लोन पे भी थे लास्ट समय, एंड रुजेरी को लाए। नाउ रुजेरी इज समवन जो कि कई लोगों को अभी बहुत अननोन क्वांटिटी, बट आई थिंक दैट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑन पोटेंशियल जो कि इवेंचुअली आपको फ्यूचर में पे ऑफ करेगा, बिकॉज एटलांटा की मैंने गेम्स देखे हैं थोड़े बहुत, तो उनकी क्रॉसिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड एवर सिंस फिलिपे लुइस लेफ्ट, चाहे रेनान लोडी आ गए हो या इवन लूकास हर्नांडेज के जाने के बाद, वो क्रॉसिंग जो लेफ्ट हैंड साइड से थी वो एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट था। सो इन दोनों चीज में काफी ज्यादा आपको अपग्रेडेशन दिखेगा। And regarding Thiago Almada, I Thiago Almada is a very strange guy. मतलब I don't want to talk a lot about his off-field issues. आप जाके research कर सकते हैं. He is not a very clean guy.
बट अल्माडा इज समवन जो अगर आपका टीम अच्छा कर रही है सो ही डेफिनेटली डू वेल, बट ही वोंट विन यू गेम्स बाय द स्क्रफ ऑफ योर नेक्स्ट, मतलब ऐसी चीजें ना, मतलब आपके स्क्वाड प्लानिंग में द पीपल जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने की अल्माडा एंड बायना बेसिकली सेम पोजीशन पे खेलते हैं, सो आपकी डेप्थ के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट क्या वो दोनों लोग आप एक साथ स्टार्ट कराएंगे, या बायना को क्या पता आप 4-4-2 में अगर आप आगे डालेंगे, सो दीज आर द सम क्वेश्चन जो हमें आगे जैसे जैसे सीजन जाएगा तब आंसर पता चलेगा। What about Johnny Cardoso from Real Betis? What do you make of his या signing? I think this has been the most important signing apart from this left hand side, because Atletico Madrid are actually playing without a DM since 2020 या 2021 सीजन, जब उन्होंने रॉड्री मैन सिटी को बेचा था एंड कॉन्डोग्बिया चले गए थे। सो व्हाट बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी एटलेटिको के पास, कि उनके पास एक नेचुरल सिक्स नहीं था, तो कभी वो डिपॉल को जब वो खरीद कर आए थे तो वहां पे खिलाते थे, कोके मेकशिफ्ट सिक्स की तरह खेलते थे जिससे उसकी क्रिएटिविटी इश्यूज हैम्पर होते थे। एंड with all due respect to Koke, we all talk about Totti, Francesco Totti, about loyalty, but Koke has been there since so long. He has been there since 2008. Pep, Enrique, Mourinho, everyone wanted him, but he never let. So he is Atletico through and through. So Yeah. उनका भी अभी टाइम खत्म हो रहा है। सो उनके लास्ट ईयर्स एटलेटिको उनको अच्छे तरीके से मोर क्रिएटिवली यूज करना चाहती है रादर देन यूजिंग एज अ प्योर सिक्स हैंड। इतने साल बिना नंबर 6 खेलने के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि एक प्रॉपर सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर लाए, सो जॉनी कार्डोसो लेके आए, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स ला लीगा में अगर हम रीसेंट कुछ टाइम की बात करें। इज अ ब्राजीलियन जो कि अमेरिकन इंटरनेशनल नेचुरलाइज हो चुके हैं, which is actually a strange decision from him, but anyways, सो वो जो आपके मिडल ऑफ द पार्क में आते हैं, जो आपको डिफेंसिव कवरेज प्रोवाइड करते हैं, दैट विल अलाउ समवन लाइक पाब्लो बारियोस, जो कि इवेंचुअली कोके रीजन की तरह फॉर फ्यूचर की तरह माने जा रहे हैं। पाब्लो बारियोस हो गए, कोके हो गए, कॉनर गैलेगर हो गए, इनको आप बहुत ज्यादा अच्छे ऑफेंसिव एरियाज में देख सकते हैं। Yes, and also Abhi, they actually pulled off not a coup, but they hijacked a transfer. जो David Hanko, जो center back है, he was all set to move to Saudi, if I'm not mistaken, और बहुत सारे क्लब्स, मतलब टॉप यूरोपियन क्लब्स वर इंटरेस्टेड इन हिम फॉर अ व्हाइल, स्पेशली इंग्लैंड में, इटली में, यूए बहुत इंटरेस्टेड थी। एंड व्हाट डू यू मेक ऑफ हिज साइनिंग? एंड आल्सो पोटेंशियली अभी दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन योर बॉय जॉन लुकुमी फ्रॉम बोलोनिया। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ एटलेटिको एंड देयर डिफेंस? या आई थिंक जो सबसे ज्यादा कुछ इशू हैम्पर हुआ था लास्ट ईयर, जो बेसिकली लास्ट ईयर अगर आप एटलेटिको का ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो वो टाइटल, ऑब्वियसली स्क्वाड तो उतना ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं था, बट उन्होंने जो गेम्स हारे ना, जैसे गेटाफे के अगेंस्ट जो उन्होंने जो गेम हारा ना, जब वो 1-0 से लीड कर रहे थे एंड आपने स्टॉपेज टाइम में 2 गोल खा लिया आरंबारी से, वहां से प्रॉपर टीम का मोरल डाउन हो गया एंड फिर इट ऑल वेंट डाउन एंड लेगानेस वाला गेम आपसे, सो वीकर टीम्स के अगेंस्ट काफी पॉइंट्स ड्रॉप किए एंड गोल्स कंसीड किए। तो फैंस वर वेरी वरीड कि अगर ये 2015 या 2016 होता या समवन लाइक मिरांडा या डिएगो गोडिन होते तो शायद ऐसे गोल्स हम लोग ना कंसीड करते, बिकॉज द गोट Clement Longley plays in defense in 2025, so I don't know how their fans are coping up with that particular guy. And ले नॉर्मान को बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंजरी हुई थी, आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज सेफ। तो उस इंजरी के बाद उनका फॉर्म अभी तक उतना अच्छा वापस नहीं आ पाया। एंड Jose Maria Jimenez, obviously the legend, La Liga legend, Atletico legend, he has been here since 2011. Very unfortunate. He, मेरे हिसाब से, is one of the best defenders in the world अभी भी, but his body आप प्रॉपर 38 गेम से नहीं ट्रस्ट कर सकते। थ्रू आउट हिज करियर उनको ये प्रॉब्लम रही है। सो आप हिमेनेस को बेसिकली आप बिग यूसीएल नाइट्स के लिए रखते हो, तो लीग के लिए उनको अच्छे डिफेंसिव ऑप्शन चाहिए थे। सो आपने हांचको को लाया एंड हांचको लास्ट समर में भी काफी ज्यादा लिंक थे एटलेटिको मैड्रिड से, बट वो ट्रांसफर उनका बोर्ड कर नहीं पाया था। इस समर उन्होंने हाईजैक की अल नासर से डील, हांचको ले आए। मैं एक स्टैट देख रहा था कि अगर आप थोड़ा सा टॉप 10 यूरोपियन लीग से अगर आप डेटा देखेंगे, सो हांचको के सबसे ज्यादा गोल्स थे, 9 या 10 गोल्स थे उनके। सो एक जो वेपन था पिछले कुछ साल से जो एटलेटिको ने खो दिया था, वो एरियली, जो अगर आप 2013 या 14-15 के एटलेटिकोस की बात करेंगे, सो एरियली लोग बहुत स्ट्रांग थे, बहुत ज्यादा हेडेड गोल्स मारते थे, 1-0 2-0 लीड एंड नाउ शट द डिफेंस। तो हांचको के आने से वो एरियल एबिलिटी काफी आती है। ही गिव्स यू अ वेरी वर्सेटाइल ऑप्शन। लेफ्ट सेंटर बैक भी खेल सकते हैं आपके, एंड वो आपके लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं। जैसे आपका कोई एक बहुत ही टफ गेम हो रहा है तो आप हांचको को लेफ्ट पे खिला के आप ऑपोजिशन को थोड़ा सा ब्लॉक कर सकते हो।
सो आप अगर आप ओवरऑल देखोगे सो स्क्वाड में काफी ज्यादा वर्सेटैलिटी बढ़ी है, एंड जो एवरेज एज थी वो काफी ज्यादा कम करने की कोशिश की एटलेटिको ने इस साल। फेयर फेयर, आई वाज गेटिंग टू देयर ओनली बिकॉज आपने देखा कि साउल निगेस अभी चला गया है साउथ अमेरिका, सेजार एस्पेलिक्वेटा भी चला गया है फ्रॉम द क्लब, दे हैव गॉटन मार्क प्यूबल एज वेल, वेरी हाईली या रेटेड राइट बैक, एंड आई एम श्योर ही वुड बी यू नो द स्टार इन द फ्यूचर if not making his way into the first team of Atletico from the first minute, from the first game. So yaar, Shivam, how do you see this Atletico team now lining up? Like if you had to draw a formation for our viewers, क्या लगता है? How do you think Simeone will set this team up with the signings that they have made until now? Yeah. So Ajay bhai, obviously goal Oblak, I don't have to say anything about him. Yeah, Best keeper La Liga में last season, and अगर आप पिछले कई साल से भी उठा के देखेंगे, so Oblak has been the best. So उधर ज्यादा discussion की need नहीं है. Now coming to defense, दो चीजें हैं. If मतलब जो आपने स्क्वाड असेंबल किया ना एटलेटिको ने, वो आप 4-4-2 काइंड ऑफ फॉर्मेशन में भी आप जा सकते हो या बैक थ्री फॉर्मेशन भी जा सकते हो. सो काफी वर्सिटिलिटी है. मेरे हिसाब से इट कुड बी बैक थ्री, जिस टाइप के पर्सोनल उन्होंने साइन किए हैं. सो राइट सेंटर बैक के लिए ऑब्वियसली यू हैव रॉबिन ले नॉर्मांड. थोड़ा सा वो बॉल पे अच्छे हैं, थोड़े से डिफेंसिव उनके इश्यूज है, बट ही इज स्टिल अ वेरी डिसेंट सेंटर बैक. एंड इनके अकेडमी से एस्पिना, जेरोनिमो एस्पिना करके, ही इज मोर देन रेडी टू प्ले. फैंस आर वेरी मच वरीड एंड सरप्राइज कि क्यों सैंटियागो मोरिनियो को बायबैक नहीं कर रहे हैं. 4 मिलियन का उनका बायबैक क्लॉज अलावेस से, तो उनको नहीं ला पा रहे हैं एटलेटिको मैड्रिड. एंड उनका लास्ट सीजन अलावेस के लिए बहुत अच्छा था, सो ही कुड बी अ गुड बैकअप ऑप्शन. इट रिमेन्स टू बी सीन कि वो एक्सरसाइज करते हैं ऑप्शन या नहीं. सेंटर में आपके पास होजे मारिया हिमेनेस का ऑप्शन है एंड डेविड हांचको का ऑप्शन है, बिकॉज दे हैव वेरी बिग फिजिक, तो आप सेंट्रली उनको डिफेंड कर सकते हो. नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव लॉन्गले. आप अगर आप हिमेनेस को सेंट्रली खिला रहे हो तो आप समवन लाइक हांचको को आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी, लेफ्ट हैंड सेंटर बैक की तरफ भी आप खिला सकते हो. या अगर आपने लुचुमी साइन कर लिया तो आप लुकुमी, हांचको एंड ले नॉर्मांड की बहुत सॉलिड बैकलाइन आप बना सकते हो, it इंक्लूडिंग. sounds like a very solid backline, yaar. Very very typical Atletico Simeone वाला backline made of steel. या सो एंड आपके पास बेंच पे भी आपके पास ऑप्शंस होंगे. द ओनली क्वेश्चन विच लुकुमी की साइनिंग इज, काफी लेफ्ट साइडेड प्लेयर्स हो जाएंगे. हांचको आपके पास है, लॉन्गले है एंड लुकुमी, सो बेसिकली तीन लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक हो जाएंगे. एंड देयर इज दिस वन गाय इलियास कॉस्टिस, जो कि पिछले काफी टाइम से एटलेटिको की एकेडमी में इंप्रेस कर रहे हैं, एंड फैंस आर आस्किंग हिम कि सिमियोनी प्लीज आप इनको चांस दीजिए. वो भी लेफ्ट साइडेड ही है, तो कॉस्टिस भी अगर आप स्क्वाड में इंक्लूड करना चाहते हो तो आप उनको भी ऐड कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि विंग बैक्स होंगे बेसिकली. हाँ, वन लास्ट थिंग जो मैं बताना भूल गया, आपने मार्क प्यूबेल का मेंशन किया था. जो ट्रेनिंग के अभी वीडियोस आ रहे हैं या जो ट्रेनिंग के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, दे आर सजेस्टिंग कि सिमियोनी ने एक्चुअली मार्क प्यूबेल को एज अ सेंटर बैक खिलाया है. एंड वी Oh, नो that सिमियोनी that या Aspilicueta डज, वाला role. हाँ, does crazy things. So I won't be surprised if Pubel plays as a right center back का option. Hmm, So hmm. ये तो हो गया. Now talking about wing backs, so left पे तो I think eventually Ruggeri will take that spot. Start में भी गलान करें, because Ruggeri को धीरे धीरे जेल इन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे टीम में, एंड जो भी डिफेंसिव इश्यूज हैं वो आपका बैक थ्री प्रोटेक्ट कर सकता है. राइट हैंड साइड पे इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज लास्ट सीजन जूलियानो सिमियोने ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट किया था. एंड जूलियानो सिमियोनी वाज वन ऑफ द शाइनिंग लाइट्स ऑफ द सीजन. पहले लोगों ने एलिगेशंस लगाए थे कि यार ये तो सिमियोनी का बच्चा है, इस वजह से खेल रहा है, बट द परफॉर्मेंस व्हिच ही गिव, एंड अगर आप जूलियानो को देखेंगे ना तो आपको प्रॉपर, अगर इफ यू हैव टू सी वन प्लेयर जिसको आपको देख के डिफाइन एटलेटिको मैड्रिड, आप जूलियानो सिमोने की देखते हैं. वर्क रेट व्हिच ही गिव्स, जो एफर्ट वो डालते हैं, जिस तरीके से ही गेट्स इनटू एवरी टैकल, सो ही इज द ऑप्शन. बट मेरा पर्सनल फेवरेट प्लेयर, एंड इफ आई हैव टू मेक अ 11 ऑफ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स, अंडररेटेड प्लेयर्स ऑफ दिस लास्ट जनरेशन, नो वन टॉक्स अबाउट इट, जैसे अल शरावी टाइप ऑफ प्लेयर आपने बात की, मार्कोस योरेंटे. आई थिंक ही इज द काइंड ऑफ गाय जिनको कभी प्लॉडेट्स उतने नहीं मिलते, कभी फ्लॉर्स नहीं मिलते, बट ही इज वेरी गुड. लास्ट सीजन उनको सिम्योनी ने एज अ राइट सेंटर बैक भी यूज किया था पोजीशन में. ही प्लेड एज अ स्ट्राइकर इन दैट टाइटल विनिंग सीजन, एंड 15 गोल्स उन्होंने मार दिए थे. लास्ट सीजन भी एक मैच उन्होंने 2 गोल्स मारे थे स्ट्राइकर खेल के. ही कैन प्ले विंग बैक, ही कैन प्ले एज अ फुल बैक, मिडफील्डर भी खेल सकते हैं. बट लॉरेंटे का ये रोल है कि आप उनको जितना आगे यूटिलाइज करोगे, आपको उतना अच्छा एफर्ट्स देंगे, ऑफेंसिव एफर्ट देंगे.
सो लोरेंटे, जूलियानो एंड ऑब्वियसली गोट मोलिना इज आल्सो देयर, उनका फॉर्म थोड़ा खराब हो गया है, बट ही इज आल्सो एन ऑप्शन। नाउ आपके सेंट्रल मिडफील्ड में कई सारे ऑप्शंस हैं जहां जहां पे आपकी काफी डेप्थ आ गई है। आई थिंक कार्डोसो विल डेफिनेटली प्ले एंड पाब्लो बारियोस के साथ स्टार्ट करेगी एटलेटिको मैड्रिड, ये तो आपके मिडफील्ड प्लेयर होंगे। एंड अगर 4-4-2 भी खेल रहे हैं तो भी यही दोनों आपके ऑप्शंस होंगी। ऑब्वियसली सामने आपके जूलियन अल्वारेज होंगे, व्हिच इज मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके लिए बायना है, आपके पास अल्माडा है। अगर आप बायना को लेफ्ट पे डाल रहे हो तो आप अल्माडा को राइट पे भी शिफ्ट कर सकते हो, व्हिच इज नॉट हिज नेचुरल पोजीशन। या आप समवन लाइक लोरेंटे को अगर आप विंग बैक यूज करो तो जूलियानो सिमोनी कैन प्ले एज अ राइट विंगर एज वेल। सो यू नो Yeah. आप देख सकते हो कितना ज्यादा वर्सेटिलिटी आप स्क्वाड में डिफरेंट प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हो। एंड दे आर आल्सो लिंक्ड विद स्टुटगार्ट का एंजो मिलॉट। तो अगर एंजो मिलॉट आ जाता है सो ही कैन आल्सो टक इन दैट रोड्रिगो डी पॉल वाला रोल इन दैट मिडफील्ड एंड ही कैन आल्सो प्ले ऑन दैट राइट विंग, बिकॉज एटलेटी के पास हमेशा स्क्वाड में बहुत ही अच्छा ड्रिबलर होता था। नाउ विद सैमुअल लिनो गॉन, जो कि अभी तक नहीं समझ में आया कि आपने क्यों बेचा सैमुअल लिनो को, बिकॉज 23 का वो प्लेयर ऑफ द सीजन था। तो आपके पास समवन लाइक अगर मिलॉट आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा ड्रिबलिंग का भी प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा। सो आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ फॉर्मेशन जिसमें एटलेटिको विल मोस्ट लाइकली। And no place for Conor Gallagher in your team? अजय भाई, एक्चुअली कॉनर गैलेगर, आई वोंट से ही हैज बीन अ फ्लॉप, बिकॉज उनको उतने चांस नहीं मिले। नवंबर की लास्ट ईयर नवंबर या दिसंबर मंथ के ही वाज द प्लेयर ऑफ द सीजन, बट व्हाट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रीमियर लीग में कॉनर गैलेगर वाज मोर सेंट्रली यूज्ड एज अ मोर डिफेंसिव एंड वर्क रेट वाला प्लेयर। इन दिस एटलेटिको मैड्रिड का सेटअप, सिमियोने सीज कॉनर गैलेगर का अटैकिंग पोटेंशियल मोर। वो Fair. चाहते हैं कि कॉनर गैलेगर आपके फाइनल थर्ड में वो डीप रन्स बनाए, लेट इनटू द बॉक्स आके आपको वो शूटिंग पावर अच्छी दे, अच्छे गोल्स मार के दे। तो Allah, गैलेगर इज मेनली यूज्ड like एज like एन a अटैकिंग like ऑप्शन। a Frank Lampard, like a throw it back to Frank Lampard type. Yeah, मतलब I don't know about that comparison, but yeah, definitely. So off the bench and आपके rotational games में Conor Gallagher is a good option. I still feel कि Samuel Lino would have been better option, क्योंकि फिर आपको एक ड्रिबलर में इन्वेस्ट नहीं करना होता, बिकॉज लीनो की ड्रिबलिंग एबिलिटीज हैज बीन द बेस्ट इन दिस पूरे स्क्वाड में। बट इवेंचुअली वो चले गए, गैलेगर का स्क्वाड है, जगह है, तो गैलेगर कैन Fair, डू अ वेरी गुड रोल फ्रॉम द बेंच। fair. Last 2 years, Atletico has spent about 300 million euros on players. And ये जो आपका graphic है, ये I think this is from 2011-12 from transfer market. This is net spend, and Atletico are या 90th in the list with minus 38.3 million euro. So can you explain to the viewers what this is all about? Because uh, first, second आप देखोगे are United, PSG, Chelsea, Man City, Arsenal, Milan, Juve. So that's the list. Atletico are 90th in that list. So if you can just give some context to the viewers about what this means. या सो बेसिकली दिस इज द ग्राफिक जो 2024 सीजन के पहले था। इट हाइलाइट्स नेट स्पेंड एटलेटिको का, जो हम लोग ने स्टार्टिंग बात की थी कि जितना आप कमाओगे उतना आप खर्चा कर सकते हो। सो अगर आप उसको देखोगे, सो मैक्सिकन लीग क्लब्स या सेरिया बी के बेनेवेंटो या अल गराफा, Salernitana. Salernitana, so basically these are the kind of clubs जिन्होंने ज्यादा नेट स्पेंड किया एटलेटिको से। सो इन दैट लाइट अगर आप देखोगे द काइंड ऑफ वर्क विद सिमियोनी हैज डन विद दिस स्क्वाड, जो कि बहुत एलिगेशन लगता है कि सिमियोनी यार ये मतलब उसको इतना मिल रहा है वो कर ही नहीं पा रहा है। सो दिस ग्राफिक प्रॉपर्ली शट्स दैट रूमर कि ऐसा कुछ नहीं है। बट देयर इज वन मोर थिंग कि आपको ये भी देखना होगा कि आपका एटलेटिका जो रीसेंट स्क्वाड है, दैट इज कंप्लीटली नॉट अप टू द लेवल। मतलब आप एक्सेल विट्सल, सिजार एस्पिलिक्वेटा, गैब्रियल पॉलिस्टा, चागलार, सोयुंचू, अगर आप इन सब प्लेयर्स से आप नहीं रियलिस्टिकली यू कांट, अगर आपको ऐसे कहना है तो मतलब आप रोमा में मतलब आप 2025 में आप जर्विनियो तो आप नहीं लेके आ सकते ना। तो बिल्कुल. मतलब बेसिकली आप अगर आप उस लाइट में देखोगे, सो इट्स अ समर फुल ऑफ रिफ्रेशमेंट। ऐसी समर 2019 में भी हुई थी जब आपके डिएगो गोडिन इंटर गए थे, जुआन फ्रान, फिलिपे लुइस, लूकास हर्नांडेज, ये सारे प्लेयर्स आपके चले गए थे एंड एक प्रॉपर रिवैम्प किया था एटलेटिको ने। आपने देखा था कि अगले साल उन्होंने लीग जीत ली थी, बट वो प्लेयर्स का डिक्लाइन बहुत जल्दी आया। मोराटा ऑब्वियसली द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली इधर से उधर वो आपके करते रहते हैं। साउल की एज आपकी हो गई, रेनान लोडी का फॉर्म डिप हो गया। सो इसीलिए आप देख लो कि इस बार उस टाइम एटलेटिको ने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया था जिनकी थोड़ी सी एवरेज एज ज्यादा थी। नाउ दे आर इन्वेस्टिंग इन प्लेयर्स जिनका पोटेंशियल ज्यादा है एंड इवेंचुअली दे कैन गिव देम अ लॉट ऑफ ईयर्स। सो
keeping both these contexts in mind, yes, Atletico have spent a lot in last two window, but this is also to revamp their squad जो कि बहुत stale हो चुका था. Now the thing comes to Simeone. काफी एलिगेशंस उन पे लगे हैं कि वो ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता. आई थिंक द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ फैंस पॉइंट ऑफ व्यू सिम्योने इज की आप एक बहुत टफ टाइटल रेस, मतलब आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मैच डे 30 में एलचे से आप हार के आप 11 पॉइंट पीछे हो लीग में. आपने एकदम बिकॉज आई वी ऑल कैन गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि नए साइनिंग्स है, थोड़ा जेल होने में टाइम लगेगा, बट स्टिल दिस इज नाउ अ वेरी गुड वेरी डिसेंट एनफ स्क्वाड. अगर वो दो साइनिंग्स और कर लेते हैं, एक ड्रिबलर ला देते हैं या एक सेंटर बैक एक्स्ट्रा या अकेडमी से प्रमोट करते हैं, इट्स अ गुड एनफ स्क्वाड कि आप ला लीगा में एटलीस्ट मैच डे 36 37 तक आप चैलेंज कर पाओ. कोपा डेल रे जो कि बहुत ही अनलकी टूर्नामेंट रहा है एटलेटिको के लिए, न्यूमेंसिया, हरक्यूलेस, कल्चरल लियोनोसा इन सबसे एलिमिनेट हुए पिछले कुछ साल में, व्हिच इज वेरी शॉकिंग. ला लीगा बी, ला लीगा थर्ड टियर की टीम्स है. आप उसमें एक अच्छे रन पे जाइए, आप सुपर कोपा डे स्पेनिया के फाइनल तक जाइए, एंड एक यूसीएल में आप एक अच्छा डिसेंट रन दीजिए. एक ट्रॉफी अगर आ जाए देन तो इट्स वेरी गुड, जैसे समथिंग लाइक अ सुपर कोपा या कोपा डेल रे, अगर ऐसी ट्रॉफी आ जाए तब तो बहुत अच्छा. बट श्योरली नाउ द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सिमियोनी विल बी मच मोर, जो कि आपके पिछले कुछ सीजन से. फेयर इनफ. मैं तुझे आउटसाइड शाउट बोल रहा हूँ एट सच एन अर्ली स्टेज. आई फील दैट एटलेटिको क्लब द मद्रिद विल विन द चैंपियंस लीग 26 So 25 26. I that would feel be some story. That would be I some feel they could story. go. I feel they could go all the way this year. I feel that the likes of Antoine Griezmann, he deserves a trophy, man, in athletic Oh, colors. Griezmann. I would love to see Julian Yeah, Alvarez also kind of become I would say, the MVP of Atletico. If not, I mean, he's already a star in his own right, but you know what I mean, right? वो एक yeah. season जहाँ पे the world recognizes that yes, this is the Atletico that Simeone dreamt of. This is what he's been aiming to do for a while, and he's done it. And लाइक जो उनका चैंपियंस लीग हार्ट ब्रेक रह चुका है, एक ट्रॉफी तो डिजर्व करती है एटलेटिको. आई रियली होप दैट दे कैन गो ऑल द वे दिस ईयर, एंड इट इज माय आउटसाइड प्रेडिक्शन एट दिस. अभी आज का डेट क्या है? 27 जुलाई, कि एटलेटिको विल विन द यूसीएल. लेट्स सी इफ दैट हैपेंस और Yeah, नॉट. yeah, I have a feeling कि for lastly I will say कि ग्रीजमैन का थोड़ा सा मतलब यू लिव लॉन्ग एनफ टू डाई एज अ विलन या वाला या सिचुएशन हो गया है. लास्ट सीजन का फॉर्म इतना अच्छा नहीं था, सो इस सीजन डेफिनेटली आप उनको बेंच से आते हुए देखेंगे. Sorloth, with all due respect, he is not a very top striker. He is best backup striker at best. आप अगर आपको प्लेन नंबर्स आपको उठाने हैं तो आप देख लीजिए द मोस्ट इनकॉन्सिक्वेंशियल गेम्स में सॉरलॉथ ने गोल्स मारे. इन क्लब वर्ल्ड कप हमने देखा कि सॉरलॉथ इज नॉट अ स्टार्टिंग क्वालिटी स्ट्राइकर, या इसीलिए या उनके व्लाहोविच एंड डार्विन नूनेस से लिंक्स आने. द कनेक्शन जो मुझे लग रहा है एटलेटिको को बहुत हेल्प करेगा इस सीजन, अगर ये कनेक्शन सही बैठा, इट कुड बी वेरी लीथल कनेक्शन इन इंटायर यूरोप. दैट इज एलेक्स बायना और जूलियन अल्वारेज. अगर इन दोनों की केमिस्ट्री बैठ गई, सो आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ गोल्स फ्रॉम दीज टू. मतलब गोल कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे आएंगे आपके मिला के इस सीजन में. Fair enough. Fair enough. We will see what happens, but it's definitely a club and a project that you should keep an eye on. And ऐसा ही content आता रहेगा. And wishing all the Atletico fans across the world who are watching this video, the best of luck in the upcoming season. Thank you so much, Shivam, for coming in and talking about Atletico's rebuild this year. मैं शिवम का ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ. He is an expert when it comes to all things South American football. And आप लोग अगर आप यहाँ तक आए हो, thank you so much for all the love and support. Like, share, and subscribe, and definitely share it with your Atletico friends, Atletico Madrid supporting friends. I am Ajay Menon. That is Shivam Singh. Until next time, it's ciao ciao.